चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां दिव्या और मैं लापता लेडीज से एक सीन पढ़ेंगे। दिव्या, इस सीन के पहले क्या हो रहा है उसके बारे में 2 मिनट बताइए, देन वी कैन स्टार्ट दिस इस सीन में दीपक के घर पर अब पता चल चुका है कि पत्नी बदल चुकी है। दीपक अपनी पत्नी फूल की जगह जया को लेकर आ गया है। दीपक के घर वालों ने इसे भेजा है कि जाओ रिपोर्ट लिखा कर लाओ। और दीपक जब जा रहा है थाने, इससे पहले वाला सीन हुआ, दीपक शर्ट बदल के जा रहा है क्योंकि उसके फादर कह रहे हैं नहीं पुलिस में इतनी महंगी शर्ट नहीं, हैसियत का पता चल जाएगा, जाओ 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 जाओ। लव। तो अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया है और हम पहली बार इंस्पेक्टर मनोहर का कैरेक्टर देखेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर मूर्ति पुलिस स्टेशन डे। A woman is singing a folk song in a police station, and we reveal that she is sitting in front of Inspector Manohar, the chief at Murthy Police Station, who is counting a bundle of notes. She sings despite the visible stress on her face. When Deepak, Gunjan, Raghu and Bilas enter the police station, the singer stops singing and looks at them. मनोहर बोलते हैं, अरे गाने का 10,000 कम किया मैडम। Manohar gestures her to continue singing, so she resumes. A tough woman cop, Belaji, directs Deepak and friends to sit on the bench by the door, then leaves. Manohar moves his head to the tune, all the while counting the money. He finds 2 torn notes, gets them exchanged with the manager, then makes a neat bundle of the money and puts it in his front pocket. He gestures to a cop, and a young boy of around 19-20 is brought forward by a constable. Manohar looks at the boy. दोबारा पी के मार पिटाई नहीं करना, कहा कि मम्मी को प्रॉब्लम होता है। The singer woman gets up to leave. Manohar too gets up, folds his hands in namaskar, touches her feet, and she leaves with her son, relieved. So just want to understand your thoughts. This is the first time we see this inspector. What are we supposed to pick up from this? Is he good? Is he bad? Is that why the scene was written like this? See, ये हमको मनोहर का कैरेक्टर, मनोहर करप्ट है लेकिन मनोहर अकिन रसिक भी है साथ में जी। तो ये एक घटना मैंने गढ़ ली थी कि मनोहर के पास हम सीधे भी दिखा सकते थे, कोई आया हुआ है, भाई साहब ये 10,000 रुपये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा पैसा कम पड़ गया होगा, कोई आई होंगी लोक गायिका, तो मनोहर ने उनको गाने को कहा होगा। मनोहर रसिक भी है, करप्ट है, लेकिन मनोहर की सेविंग ग्रेसेस भी है। तो नोट गिन रहा होता है, आप फिल्म में भी देखें, गाना चले जा रहा है, मनोहर खुश है। और फिर जैसे ही वो रुकते हैं तो फिर बीच में उनको गाने का तो 10,000 कम किया मैडम, कंफर्म, तो मैडम फिर गाने लगते हैं। तो आपको समझ आती है, आपको पहली बार आपने कैरेक्टर को देखा, आप समझ के करप्ट है, ये रसिक है, ही ओन्स द वर्ड ही इनहेबिट्स। अब ये आदमी की ये 3 बातें यहाँ तक हमें समझ आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगा अभी हमें देखने में। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। A constable gestures to Deepak and his friends and they can go up to the inspector. Gunjan takes charge and walks up to the table. Gunjan says, सर हम गुंजन, Manohar ignores him. हम MLA साहब के खास हैं। Manohar gestures for him to sit. Gunjan points to Deepak. ये हमारा दोस्त दीपक, एक 3 दिन पहले ब्याह हुआ है, कल रात विदा करा के लौट रहा था, रास्ते में बीवी खो गया सर। Manohar looks at Deepak and asks, कैसे भाई, हम तो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, खो ही नहीं रहे सर। The constable starts laughing. The senior constable Dubey tells Bilas and Raghu, सर मजाक लाइक करते हैं। The boys start laughing when abruptly Manohar stops smiling and says, 15,000। Gunjan looks at Deepak, who digs in the hidden pocket in his pants and takes out 5,000 and hands it to Manohar, who counts and looks at Gunjan. ये तो 5 है, बाकी का 10। Bilas says, ये भी गाना गा देगा सर। Manohar turns his cold gaze to Bilas and says, गाओ। Bilas suddenly awkward. अब हमको नहीं आता। Manohar says, हम सिखाए देते हैं, रंबो। As he says, "Hey Lambu," the tall constable hits Bilas with a lathi on his posterior. Bilas shouts, "Ah!" Manohar turns back to Gunjan. So actually, बिलास बेन shouts ना, हमको गाना नहीं आता, हम सिखाए देते हैं, फटाक। So यहाँ पे मुझे एक और सवाल था कि जो हुआ है ऑलरेडी वो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे एज एन एक्सपोजिशन एटलीस्ट एज अ कैरेक्टर उसको बताना पड़ रहा है। सो वी हैव टू कीप इट शॉर्ट, राइट? क्योंकि हम ज़्यादा लंबा उसको रिपोर्ट करने में जाएंगे तो अगेन इट माइट बी रेपिटेटिव फॉर द ऑडियंस। ऑल्सो ये अभी तक फिल्म जिन स्पेसेस में थी उनसे एक अलग स्पेस है। यहाँ पे जब एक आम आदमी आता है अभी भी गांव में थाने, उसकी हिम्मत नहीं होती कि थाने में बैठ जाए,
जी आप विजुअली भी देखेंगे वो मैम बैठी हुई हैं जो वेल ऑफ सिंगर हैं, ये पीछे खड़े हुए हैं। इनमें से पहले दीपक आगे आएगा, और दीपक क्योंकि एमएलए का खास है, ये बताना पड़ता है कि हमें कुर्सी दे दीजिए एटलीस्ट। जी वो बैठाता है। तो पावर स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मनोहर का क्या रॉब है यहाँ पर, वो इनको भी पता है कि पुलिस करप्ट है यहाँ की, वो पैसा लेकर आए हैं अपने हिसाब से जितना 5 है, और वो बाकी का मांग रहा है, तो वो एडजस्ट करने के लिए फिर वो गाना गाने की बात आती है। जी विल मूव अहेड। गुंजन सेज, सर आप कहें तो हम एमएलए साहब से फ़ोन करवा दें। मनोहर साइज, ही नोज ही विल हैव टू परस्यू द केस इफ एमएलए कॉल्स। ये एक्टर को नोट है, ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए ही नीड्स टू अंडरस्टैंड क्या एक्सप्रेशन बनाना है। हाँ, कई बार कि अभी जैसे आई थिंक कि ये वाला हिस्सा शायद फिल्म में एडिट में नहीं होगा, ये शायद था नहीं था आई सॉ इट दिस। तो अब वो जो कह रहा है कि सर आप कहें तो हम एमएलए साहब से फ़ोन करा दें। आपने कहा कि मेरे पास तो पैसा कम है 10,000, तो अब इसका तो अब मन है नहीं कि मैं अब तुम्हारा काम क्यों करूं। ही इज़ अगेन पुटिंग प्रेशर कि सर एमएलए साहब का खास मैं तो अब इंस्पेक्टर इज़ नॉट हैप्पी वाइल डूइंग इट, बट जी इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी तो कई बार इफ़ यू थिंक कि मैं सेट पर नहीं होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो यू राइट अ नोट फॉर द एक्टर कि मनोहर साइज, ही नोज ही विल हैव टू परसू द केस इफ एमएलए कॉल्स। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक्टर को हम लिख लेते हैं। लवली। मनोहर सेज, रजिस्टर आइए। Dubey writes in the register. Deepak sits and narrates his story. Manohar is all business now. साहब हम सूरजमुखी गांव से हैं। 4 रोज पहले 27 तारीख को मेरा शादी हुआ गंगापुर की फूल कुमारी से। शादी का अगला ही सुबह हमारा फैमिली सुबह सब वापस लौट रहा था, हम 2 दिन ससुराल में रुके हैं। Manohar sips his tea. बेबी के साथ 2 दिन रहे ना। Deepak nods. चलो शादी का खर्चा थोड़ा तो वसूल हुआ। Dubey chuckles loudly and Deepak is embarrassed. कल विदाई था, हम बेलापुर कटरिया एक्सप्रेस पे चढ़े और मूर्ति स्टेशन उतरे। घर पहुंच के देखा तो जिसको हम घर ले आए वो हमारी दुल्हन फूल नहीं है। This is also the power dynamic, right? He is embarrassing Deepak. तो He can afford to embarrass Deepak. He doesn't care a damn about कि इनको कैसा लगता है, इनको कैसा लगता है। जी। It's still a very mild joke. He could have gotten away with anything. But maybe because MLA का नाम लिया गया है तो just a minor joke is enough. और उसके अलावा वो अभी कहानी इस बारे में नहीं है। जी हमको मनोहर जितना बुरा चाहिए हम दिखा चुके हैं, इससे ज़्यादा बुरे की हमको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मनोहर इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर लेता हो जी लेकिन फिर उसका रिडेम्पशन हमारे लिए करना आखिर में थोड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। वो रिडेम्पशन करना था, इसलिए थोड़ा उसको ग्रे दिखाना ज़रूरी है एज अ कैरेक्टर ड्यू। बिकॉज अगर ये जैसे ये रोल जो है अगर ये शुरू से एक बाय द बुक पुलिस वाला होता, आपको पता है ये तो सही आदमी है, ये तो आखिर में नहीं होने देगा बुरा, क्योंकि ये बुरा है, इसीलिए इसका टर्न अराउंड मेक्स इट मोर एंटरटेनिंग। ब्यूटीफुल। और वो टर्न अराउंड सीन भी बहुत टर्न अराउंड सीन इसीलिए काम करता है इन सीक्वेंसेस की वजह से कि एक करप्ट आदमी है। पहला नोट जो आपने देखा जिसे कहते हैं कैरेक्टर की, जब आप कैरेक्टर से पहली बार मिलते हैं आपका एक रिश्ता बन जाता है इस चरित्र से कि कैसा है। जब DDLJ में हम शाहरुख खान को पहली बार देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो झूठ बोल के अमरीश पुरी की दुकान से बियर लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच ही डज अहेड इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। वो झूठ बोल के उसके घर से उसकी बेटी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर को जब हम पहली बार देखते हैं, मनोहर करप्शन में इन्वॉल्व है। तो जब हम आखिर में देखते हैं मनोहर के सामने फिर पैसा देता है तो उसका पति जया का, तो ऐसा लगता है ना तो रखी लेगा प्रदीप से पैसा लिया है। जी। Then the flipping around works big time. फैंटास्टिक। और ये वी हैव टू प्लांट इट सो मच अर्लियर। ये सीन कितना पहले, वो तो ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में होता है वो सीन। बिल्कुल। लवली। मूविंग ऑन। मनोहर बोलता है तो कौन थी? कौन थी? दीपक। सिर्फ पुष्पा, कौन और का दुल्हन। He exchanges a look of interest with Dubey. मतलब सिर्फ अपनी वाली को खो नहीं दे, दूसरी किसी की उठा भी लाए। The cops laugh. किसकी भी उठा लाए बे? Gunjan says, कौन? पंकज की। अच्छा, लड़की का नाम बताए? पुष्पा रानी। उसको लाए काहे नहीं? थाने के नाम से डर गई। थाने में कौन सा डर की बात है बे? Deepak looks back at Bilas, who is still grimacing in pain.
अब ये बीट इसलिए है कि बिलास को पता है थाने में क्या डर की बात है, थाने में बिना अपराध के भी लठ पड़ जाता है जी, लेकिन वो अंडरलाइन करने के लिए मनोहर थाने में कौन सी डर की बात है, वो fantastic. अपने वाली का फोटो है। है. And then that lovely little sequence which you've seen, I think, in the trailer also. Deepak takes out a photograph wrapped in a piece of newspaper from his kurta's pocket. He opens and gives it to Manohar. He looks at the photograph while taking a sip of tea and almost freezes. He somehow manages to gulp down the tea speechless. Deepak and Pool stand side by side in a wedding dress in the photograph. But Pool is in a big veil covering her head, face, and almost half of her upper body. Manohar looks at the photograph and then at Deepak. बहुत सुंदर है। Deepak feels proud and shy, while Manohar sighs in despair at the lost sarcasm. He returns the photo. कौन निशानी है, तिल, मच्छा, चोट का निशान है। Deepak says, नाक के नीचे तिल है, सरसों बराबर, फोटो में मिस कर गए। लिखो, तिल है नाक के नीचे, सरसों बराबर। again the sarcasm is lost on Deepak. कितने का जेवर पहनी है? सब है उतरवा लिए थे, बस मंगलसूत्र है, और जिसको घर ले आए वो कितने का पहनी, वो पहन रखी है ठीक ठाक। Manohar processes this information with interest. Again, we're trying to... कि पैसे, जैसे जेवर की बात आई, मनोहर की आंखें चमक जाती हैं, कहाँ की है? And he brings it up, saying Yes. that he's interested in that. Manohar says, कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। मायके में फोन है, हर बार गलत नंबर लग रहा है। Manohar smells a rat. हम ढूंढाई शुरू करते हैं, तुम जाओ, कल इस बाली को लेकर आना, चलो जाओ। Deepak nods. He and his friends fold hands and leave from there. Manohar looks thoughtful. एंड दुबे से सर इसी पे अपहरण का केस ठोक दें, 336, 363, 366 में दबोच लो साले को। कमी देखी थी, पैदाइशी गरीब है, पैदाइशी गरीब को अंदर डाल के हमको क्या मिलेगा बे? सोने की चिड़िया तो पुष्पा रानी है, देखते हैं कल आती है कि नहीं। So we continue, hammering the fact और that he's... जो बात आपने देखी, जैसे हमने सीड इन किया था कि वो थाने आ रहा था अच्छी कमीज पहन के, उसका फादर कहता कि नहीं अच्छी कमीज नहीं पहनना, थाने में समस्या बताओ, हैसियत नहीं। यहाँ पे इट कम्स इन हैंडी कि पुलिस उससे क्यों नहीं उसको ज़्यादा दबा रही है, अरे कमीज देखिए पैदाइशी गरीब है। जी। तो उसमें इट डजंट एड टू योर प्लॉट डायरेक्टली, बट इट मेक्स द सराउंडिंग्स इवन रियल। बिल्कुल। कि यार ऐसे ही होता है, थिएटर में एक भी आदमी कहते हैं ना, बात तो ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है हमारे साथ, आपका तीर ठीक लगा। अब ये रिसर्च है कि आप बोल रहे थे कि ये हमने देखा है, आपने बचपन में देखा रही क्या उसको भी रिसर्च का एक मुझसे पूछ रहे थे कि रिसर्च के बारे में, तो मैं इसकी मैंने बहुत 40 साल रिसर्च किया है क्योंकि मैं आई ग्रू अप इन दोज स्मॉल टाउन विलेजेस एंड पुलिस स्टेशंस, तो वहाँ हम ऑब्जर्व करते थे, लोग ऐसे ही होते हैं पुलिस वाले। तो अगर आपने वो नहीं देखा होता है तो आपका पुलिस वाला सिर्फ करप्ट बन के रह जाता है, उसके अंदर बाकी तत्व डालने या ढूंढने आपके लिए कठिन पड़ते हैं। बिल्कुल। कि उसका करप्ट होना उसके रसिक होने पे या म्यूजिक को अप्रिशिएट करने में बाधा नहीं है। बिल्कुल। ये सीन ड्रामेटिक भी हो सकता था, ये सीन वी वांट टू एस्टैब्लिश कि दीपक आते हैं, जिसको प्रॉब्लम बताते हैं, वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट मनोहर जी इज़ अ ग्रे कैरेक्टर, लेकिन इसमें कॉमेडी का टच डालना हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट? इज इट बिकॉज ऑडियंस के लिए, डू वी डू इट फॉर द ऑडियंस, डू वी डू इट बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल फॉर दैट? हमने ये किया इस फिल्म के वर्ड व्यू की वजह से। जो लापता लेडीज़ का प्लॉट है, इट कुड हैव बीन ए वेरी डार्क फिल्म। जी। 2 लड़कियां खो गई हैं, एक पराये आदमी के साथ एक नई जगह पर आ गई है, एक अकेली रेलवे स्टेशन पर रह गई है। जी। इन हैंड्स ऑफ एनीवन एल्स इट कुड हैव बीन ए रियली डार्क फिल्म। लेकिन किरण जी का, पूरी राइटिंग टीम का जो वर्ड व्यू था वो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होपफुल वर्ड व्यू है। तो उसमें एक ऐसा ब्लीक नोट नहीं लगाना चाहते थे हम, जो लगाने के बाद आपको बाकी फिल्म की लाइटनेस एंजॉय करने में दिक्कत हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये अगर एक विजुअल मोन्टाज बना रहे हैं आप, तो उसके बीच में मैचिंग के कलर्स जो आते हैं ना, पेस्टल शेड्स में आएंगी सारे बाराती, बिल्कुल। उसमें काले शेरवानी में अगर आ जाए मौसा जी तो ऑफ लगेंगे। तो ये सीन या कई सीन्स ऐसे हो सकते थे जो बाकी आपकी जो कलर पैलेट है उससे अलग हो, इमोशनल कलर पैलेट से, पर नहीं होने चाहिए वो कलर, अनलेस आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं वहाँ से कहानी को घुमाने वाले, वरना एक इमोशनल कलर पैलेट होता है हर कहानी का, जिसमें मोटे मोटे उसी शेड कार्ड में चलता रहे।
Share this with your friends and don't forget to subscribe to TCP Originals.